Obesity is not just a cosmetic concern, it becomes a part of your identity. Obesity. Obesity. Obesity, which is, as we know, silent epidemic. How do patients realize that, okay, now it's a red flag for me and I need to consult a doctor? Most of the people have been thinking that it is just a lifestyle. Once these people they go beyond body mass index of 35, they are not able to sleep at night. They have to get up for the want of oxygen, or they start features of diabetes or hypertension or different diseases. And then they start realizing that now I need some help. आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें सबसे ज्यादा लोग किस प्रोफेशन से होते हैं? IT प्रॉब्लम यही होगी कि दे आर सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, स्ट्रेस बहुत है और नाइट में दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग एंड दे आर ऑर्डरिंग एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एनी मोमेंट एनी टाइम. They don't realize it that they are ordering carbohydrates. I've heard names like Mounjaro in Dubai, I've heard Ozempic. Can you shed some light on this? I always tell my patients, look at Karan Johar. His cheeks are dumped in. Yeah. Why? Because he was on Ozempic and he has been not told that this Ozempic leads on to fat loss, but it leads on to muscle loss also. Yeah. And if you leave this drug, then muscle is not going to come back, the fat may come, and then you will have another ugly picture of yours. तो मैं हमेशा कहता हूँ चीनी, चिकनाई, चावल, चपाती, चारपाई और चिंता से दूर रहो. ओह, क्या बात है. Hello and welcome to Project Life with Simply Pankaj. In a world obsessed with lifestyle and looking sexy all the times, obesity is not just a cosmetic concern. It becomes a part of your identity. And this is what we are going to discover in this knowledgeful discussion with Dr. Parveen Bhatia, India's leading surgeon with more than 40 years of experience in minimal access surgery and bariatric surgery. So let's understand from him how complicated is obesity as a condition. Thank you very much, Pankaj, for inviting me to this show. And I would say that obesity has been labeled as a disease by the WHO. Initially, all of us were thinking that, I'm just overweight and I may be 156 kg or 160 kg, but still, otherwise I'm healthy, I'm moving around. So I always used to think that it is just a variation. Yeah. But lately, all of us have realized, more so the obesity surgeons, the obesity doctors, have realized that it is a disease in which multiple comorbidities are there. For example, obesity will lead on to diabetes, hypertension, thyroid problem, heart problem, sleep disorders, joint problems, spine problems, and so many problems. So we call this as a disease rather than just a condition. So it's like a route to so many other diseases. Exactly. So most of the time, this is never a overnight condition for a patient. This is something which takes time. And how do patients realize that, okay, now it's a red flag for me and I need to consult a doctor? Absolutely. Most of times, most of the people have been thinking that it is just a lifestyle. True. Because I am eating and I'm enjoying my life and I'm happy. That is why the more the merry you are, the more the obese you are. But our thinking is that once these people they go beyond body mass index of 35, then they start having that so-called red flags that they are not able to sleep at night. They have to get up for the want of oxygen. Wow. They have the acidity reflux and then they feel it. Or many times when they are climbing the stairs or climbing down the stairs, then they are breathless. Then they start realizing, or they start features of diabetes or hypertension or different diseases. So that becomes a red flag for them that no, I am not. Or when they take a flight, for example, and when they go to the plane, and then they realize that they are not fitting into the seat. And then they start realizing that now I need some help. So now let's say there is somebody who realized that yes, they are obese and they need to consult Dr. Bhatia. What is the first thing you ask from them? Honestly, we take the height, weight, and body mass index, and plus we try to understand their psyche as much as possible. That for how long, and most of the time, most of the people, especially girls and
they will always say that बचपन से ही मैं तो अट्टी कट्टी थी, बचपन से ही मेरा मोटापा था, इतना था. मगर ultimately we have realized that there is a watershed movement, maybe especially in females, especially after childbirth, that they start increasing their weight and they carry on increasing their weight. They will never come down to the original weight which they were having before the childbirth. So ultimate thoughts are that these are the patients when once we break the barrier. Yeah. Let's be very honest about it. I don't laugh at them. Hmm. And we should never laugh at them. We break the barriers of doctor-patient relationship. I think that yes, you are my colleague. Let us discuss about obesity. Let us discuss about the challenges you are facing. And then we slowly build up and then we examine and then get the investigations done and so on and so forth. So let's say once a patient approaches you, you have diagnosed this is the problem and this is how you want to cure them. So do you recommend them surgery straight away or is it a road to the surgery? Absolute, fantastic. If I tell them that today, if the patient comes to me and I tell them that yes, you need a surgery and that I am the surgeon and Let's go. let's go. And I think I am digging my own grave. As simple as that. So our thinking is no, they should also understand. The person should also understand that they need some kind of help. And as I mentioned, that we work mathematically. That if the body mass index is between 30 and 35, that means height in meter square, kilogram divided by height in meter square. If it is between 30 and 35, they are overweight. They can still manage with exercise and they can, with the dieting. They can still manage. But if they have gone beyond 35, then definitely we start telling them that you need to have some investigations. And let's be very honest about it. I always tell my patient that I am the last person to operate on you. Yeah. I am the last person. I would love that if you can do the weight reduction on your own, naturally, by exercising, by dieting, nothing like it. Because you cannot beat nature. Yeah. So if you and I always tell them that set the small targets. Most of the times, most of the people fail because if they have a big target and they are not able to, the New Year resolution, we are talking on a New Year. So they have a New Year resolution and that lasts for 15 days. And after that, everything is same. So we always say that have a target of 10%. 10% weight loss this time from this period to this period. Once you are able to achieve it, another 10%. Another 10%. And another 10%. So give yourself 6 months, 8 months, 1 year, or then decide, yes, if you are able to do it, nothing like it. If you are not able to do it, then we are there. And then we should always get the investigations done. And investigations means a battery of tests of blood and urine and X-ray, echo, ECG and whatnot, so that you are knowing the reality. Reality check is there. We are not assuming that you are absolutely good from within also. But if you get the investigations, if many people, for example, if we do the endoscopy, we find that hiatus hernia is there. Definitely it needs help. They need help. If we do the sleep study, they have snoring, they have apneic spells. So they need help. Diabetic, uncontrollable diabetic, then they need help. So that is the criteria which we always set in when we are having the first meeting. So which means getting an early win in weight reduction is really very important. Absolutely. Which gives the patient the confidence that yes, I can move things on my own. Eventually, if they are not able to still get those wins in beyond 35 as a BMI, that's where you step in. Absolutely. So once you step in, what are the kind of surgeries that are possible for weight reduction? Very good. I would say that they can be broadly classified. Surgery can be broadly classified into laparoscopic surgery, robotic surgery. Laparoscopic surgery is keyhole surgery with long instruments, which we do. And robotic surgery is specially reserved for those kind of people who are having a BMI of 50 and above. We call them as super morbid obesity. Can you imagine that we have operated a patient of 186 kg, 300 kg, 280 kg with a BMI of 84, 85. And for them, abdominal wall thickness is so much that our laparoscopic instruments will not even go in. So for those kind of patients, we reserve the robotic surgery. So robotic surgery is for super morbid obese patients and laparoscopic surgery is for BMI of 35 to 50. And in this, what we do is, again, they are classified into two major chunks. One is called a sleeve gastrectomy. Another is called as gastric bypass. Sleeve gastrectomy means that we are reducing the size of the stomach to maybe 1/10.
For example, if the person is having a BMI of 35 and his or her stomach size is 1.5 liters, so we ultimately staple, suture and make it maybe 100 or 150 ml. That's it. So the brain also gets the signal that now the stomach is full, you need not eat more, and that is the reason that the fat melts down. And there is another procedure which is called as gastric bypass. That means you are bypassing the stomach and the food is directly going into the small intestine. But for those, I would say that we have the special indications where those patients who are having diabetes, who are being controlled on insulin, but they are not being controlled. What I mean, so even after 100 units of insulin, the still diabetes is there. So for them, yes, the bypass has shown the better results. Similarly, as I mentioned, that if the patient is having reflux, if he is not able to sleep at night, he has to get up at night. He or she has to get up at night because of the acid, because of the reflux in the mouth also. For them, we get the endoscopy. If there is a hiatus hernia, we call this as hiatus hernia. So if there is a hiatus hernia, we label them, yes, you need gastric bypass rather than the sleep gastrectomy. So, Doctor Sir, when you became an MBBS in 1982, the year I was born, right? Did you know that this is a specialization that existed? No. How did this journey happen? I would say that in class 9th, that means 73, 74, Wow. one of my cousins asked me that I used to be a topper in my class in school every time. No wonder. So he asked me, क्या बनना चाहता है? So I told him, surgeon बनूंगा. And can you imagine that my cousin of mine, he is 5 years elder to me, he laughed at me and that laugh got stuck into my heart. Ouch. And then I said, that I will become a surgeon. He says that हमारी family में कोई doctor तो है नहीं और तो surgeon बनना चाहता है. So then I said, yes, I want to be a surgeon. And that was the time that I carried on working hard. And then I was in Maulana Azad Medical College in first attempt and passed out. Then I did MS surgery from Delhi University and then registrarship and everything. But till 92, I would say that there was no question of knowing even what is obesity surgery. We started to know about laparoscopic surgery. Laparoscopy was started in 1991. And we were the pioneers of doing the laparoscopic surgery. We used to do gallbladder surgery, hernia surgery, uterus surgery, and so on and so forth. But way back in 2000, that whole of the world saw the success of gallbladder stone removal by laparoscopy, and then they were driven that why should the obese person have such a big incision for such a small job of reducing the size of the stomach. So the laparoscopic surgery and robotic surgery started. And we were again the pioneers to jump into the bariatric surgery. And we call this as weight loss surgery or metabolic surgery. Yeah. This is not a bariatric surgery now because it is not the weight loss only. Yeah. It is the weight loss plus reduction of the comorbidities. So this is a metabolism is changing and that has led. So I would say that 2000, then I went to US again. I was in UK and then US. And then I went for retraining myself to US and I observed a lot of surgeons there who are doing the bariatric surgery. And then we started in Delhi. And then for, I would say, 2 decades, we have been doing in Gangaram Hospital as well as my own hospital, Bhatia Global Hospital, the bariatric surgery. And God has been very kind. God has been very Very kind. ultra kind. Ultra kind, as we say. So, when we speak about surgeries, there are a lot of fancy alternatives that have come in the market. I've heard names like Mounjaro in Dubai, I've heard Ozempic, and I believe there was a news a couple of days recently that there is a third drug which has been approved for India also. Can you shed some light on this topic? Yes. Excellent question. And it is the question of the present, as simple as that. That so many companies, corporate, are driving this force. And for example, as you mentioned, that injection Mounjaro, semaglutide have come. But I would say this has become a hot selling cake. In the initial phase, the cost of the injections is also too much. Yeah. But still, people are going for it, running for it because they find that it is a band-aid. It is easy to do surgery. It's a quick fix. Quick fix. So they ultimately are opting for it. But let's be very honest about it. And through this podcast, I would tell my younger colleagues or other patients also, people also, that
this is not a quick fix. Hmm. You should always have a doctor consultation. One should always discuss about the problem. If you are a diabetic, if you are obese, if you are having comorbidities, yes, injection Mounjaro is a good option. Yeah. But the corporate also, the companies also tell you that you have to take one injection every week and continue lifelong. Yeah. But most of the times, the studies have proven that people, even in US, who are having this injection at $1,000 per injection, but still they are not able to maintain it beyond maybe 2 years. And once they have the weight loss of around 20 to 20% of their excess weight, they have a weight loss. But once they stop it, then it rebounds back. Yeah. Once they stop this injection, then the diabetes also comes back. So our thinking is that you should have a clear-cut mind that these are the drugs which are latest, but there are a lot of drugs which are having good side effects. Can you imagine? In Australia also, they have conducted a complete survey, and in which they have found out that suicidal tendencies have increased like anything. Suicidal tendency. Suicidal tendencies, depression. And honestly, I have operated recently, maybe around 1 month back only. One of the patients came and he is around 45 years old, very obese. He was 154 kg. His wife is a smart and IT people. So I asked them that, why are you depressed? His wife answered immediately, sir, what to talk about depression? He is having thoughts about suicide. So I said, why suicidal thoughts? Kehti, because of obesity. I said, no. Are you on some drugs? Kehti, yes, he is on F. some drug. medication, Yeah. which we all discussing. So I told them that, has your doctor told you that if you take Ozempic, if you take Rybelsus, if you take Mounjaro, if you take these kind of drugs, you will have some suicidal tendencies or anxiety or depression even. She says, no, it was never told. And again, I told them that go back to the same physician who had started this medication and ask him. And then we investigated him thoroughly. He was diabetic and he had sleep apnea syndrome and whatnot. And we operated on him, left the drugs, no drugs now. And now he is very, very happy. So it was not inbuilt depression which he was having, but it was the side effect of the drugs which he was having. So again, a caution is that please do not decide on your own that I can purchase, I can buy and start injections or treatment or tablets. No, go to the physician, get yourself investigation. And if after multiple consultations, if you find, both of you, doctor as well as the patient, find that this will be a good method of reducing the weight to maybe 17% or 20%, it's fine. But if you are not convinced and if you are bothered about these side effects, please refrain. You have seen one of the celebrities. Should I name him or not? We can go ahead and Karan Johar, for example. Honestly, I always tell my patients, look at Karan Johar. Now his cheeks are dumped in. Yeah. Why? Because he was on Ozempic and he has been not told that this Ozempic leads on to fat loss, but it leads on to muscle loss also. Yeah. So if there is a muscle loss, if there is a fat loss, then obviously the face will shrink. And if you leave this drug, then muscle is not going to come back, the fat may come, and then you will have another ugly picture of yours. So our thinking is, please weigh the pros and cons and then go in for medication. And if you are ready to go in for life, it's fine. If you are not ready monetarily also for taking it maybe 6 months or 8 months, that is not the answer. So who is this injection made for? Basically diabetics. Only diabetics. It was for diabetics. The trapeziolide has been discovered only for diabetes. And this was a side effect that they found out that if the diabetics are being given this injection, every week they are giving some injection and the diabetes control was there, but they found that good amount of weight loss was also there. 15%, 17%, 18% weight loss was there. And that is the reason they found out, why not push it for
Weight loss. weight loss rather than for diabetes. And then it became a fashion statement. Then it has become a fad statement that I am on Mounjaro, I am on It's a Ozempic. flex nowadays. It is, yes. So I think one has to be very, very cautious. And it is our duty also. Let's be very honest about it. It is our duty, doctors, obesity surgeons, physicians, to tell the patients that yes, these are the plus points about these drugs, and these are the minus points of nausea, vomiting, constipation, diarrhea. Lack of All these side effects are there. So we should know these rather than suffer and then know. So I have seen a couple of my ex-colleagues who were working with me and they were on one of these medications, and I could see them that after 20-30 minutes their hand would start shaking. Absolutely. Even the thyroid carcinoma, Yeah. cancer of the thyroid, has also been proven. The pancreatitis incidence increases after these injections. So I am not against, but I am against this awareness, misinformation. Yeah. Absolutely. This is not an era that we should just search Google and start taking medicines. No. So do not trust the ChatGPT version that you are getting as an answer from. Absolutely. Trust Dr. Bhatia on this. No, I would say not only Bhatia. There are so many obesity surgeons, but definitely have a good, and it has to be individualized. It should not be that one trouser fits everyone. True. No, it has to be individualized. And then if you have been investigated, and if you are finding diabetes, if you are finding obstructive sleep apnea syndrome and so many things, then definitely we should discuss, and we should discuss the timeline also. That for this long, you will carry on the medications and will see the effects. And if you are not able to do it, then let us switch over to operation. So now I have a question in Sure. mind. Let's say there is a patient, let's say Karan Johar. He started with these injections. He believes he's doing well, right? And the people around him make him believe that he's doing well as well. And he has a history of being in depression because of his weight before. So he feels this makes him feel confident, and he wants to skip getting these injections every week now. So what is the next step for him? Next step is again get the investigations, and he should know that if he does not want to take medication, then there is a rebound phenomenon. And rebound to the order of one, the weight regain. And if the weight regain has been proven, that if, for example, there was, as I mentioned, 15 to 17 to 18% loss was there, now the increase regain will be 22%, 25%. And similarly, diabetes also. Diabetes also comes up. So if he is not ready to take up the injections further, then again he should consult doctor, and then they should taper it off rather than suddenly jumping off. What happens if they suddenly jump it off? They will have the weight regain, and it will be so fast that they will be having challenges. Let's say if you have taken these special drugs, but you compensate them with good exercise and healthy food, does it still help? Does it help us to prolong the effect? Absolute. Good question. Very nice question. Our thinking is that this is a good primer. Yeah. For Initiator. for lifestyle management. None of us from our fraternity should tell the patient that this is a Ramban. This is not a Ramban. It is a initiator. And once you are taking this and you are having some weight loss, and then you start modifying your lifestyle, that's it. That should be the aim. That should be the aim, so that ultimately you are able to reach the goal. But if you are thinking that I will not exercise, I will not diet, you are not able to take it. Let's be very honest about it. These patients are having satiety, early satiety, and then they feel full, and then they are not able to take. Even the diabetics. Yeah. Even the diabetics are also not able to take much. Wow. Because of the brain signals which it is sending. So they are not taking, but they are not exercising. Then they will have loose skin, muscle will not be there, and lifestyle modification has not been done. Then they will repent. They will repent in the long term. So our thinking is treat it as a primer. Yeah. And use it and especially for those BMIs of 35, 38, 39. That's it. But if you have gone beyond, then start thinking about that I will do on my own. I will try my best to do my weight reduction on my own. If I am able to do it, nothing like it. If I am not able to do it, then surgery is a long-term maintenance. It is a long-term result, and it has the best weight loss one could ever think of. Yeah. So this is a very valid point which you mentioned that okay कि आपने इस तरह के ड्रग्स के साथ जॉगिंग शुरू कर ली, पर अगर आप लंबी रेस का आपको घोड़ा बनना है तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी. करानी चाहिए so that आप मेंटेन कर पाओ. जी. लॉन्ग टर्म मेंटेन कर. जी. So Dr. Saab, when
a celebrity comes to you and puts you under the pressure saying कि डॉक्टर भाटिया मेरी मूवी है 6 महीने में और मुझे एब्स चाहिए तो इसलिए मेरे को ये सब चीज़ें करनी है तो आप मुझे प्लीज़ ये लिख के दे दो. So what is your next step? I am the last person. I always tell कि अगर ऐसे रिजल्ट चाहिए तो go to my enemies. What I mean to say, we should have, I always believe on communicate, over communicate. Hmm. Over communicate. ठीक है, ultimately we should be on the same page. Yeah. And there are people, I can vouch for them, कि there are so many young people, 27, 35 age, and they have been so motivated after the surgery also that they develop 6 abs and then they are able to show off those abs also. And the females also. Yeah. Females also, they have lost such a big weight loss has been there and they are able to show off. But especially for these kind of situations, I would say no, refrain from these drugs. Try to do on your own. And if you are able to do it by exercising, but yes, definitely it is an excellent method. But more important is, as a obesity surgeon, I always tell them, one is exercise, two is protein. Yeah. Remember protein. Most of the times, most of the people are concentrating on carbohydrates. Correct. And they are taking a lot of carbs and that gets converted into fat. And then still they say that I am taking, अपनी पंजाबी जिवें कहंदे हैं ना, 2 रोटियां खानी है मैं. हाँ, और 2 सवेरे भी ते रोटियां शामी भी. सवेरे ते शामी. पर ऐ नहीं पता कि वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो. हाँ जी. There are people who would always say कि सर मैं तो अल्कोहल ही लेना है बस और तो कुछ लेता ही नहीं. हाँ. So alcohol is nira sugar. If you are taking nira sugar and you are still contemplating that you will lose weight, why? How can you lose weight? Yeah. So our thinking is that lifestyle modification should mean, one, the exercise, 45 minutes of exercise every day, whatsoever kind of exercise, and two, your focus, mind focus on protein. No fat. Less carbs. And that's it. So once that mindset or the perspective changes, then everything starts changing. Very valid point. Protein. I love this line and I'll definitely use it many more times before. Definitely with my son too, who is 11 right now. Quote unquote Praveen Bhatia. Quote unquote Praveen Bhatia. Copyright with him. अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें सबसे ज्यादा लोग किस प्रोफेशन से होते हैं? IT. IT. IT वाले. Because अब IT वाले प्रोफेशन में प्रॉब्लम यही होगी कि दे आर सिटिंग ऑन द कंप्यूटर एंड दे आर जस्ट स्ट्रेस का इंटेक बहुत स्ट्रेस बहुत है और नाइट में दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग एंड देन ब्लिंकिट एंड व्हाट नॉट दे आर ऑर्डरिंग एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एनी मोमेंट एनी टाइम एंड दैट इज द रीजन एंड दे डोंट रियलाइज इट दैट दे आर ऑर्डरिंग कार्बोहाइड्रेट्स. If they start ordering protein, definitely change will be there. If their sleep cycle also changes, that is also one of the causes of obesity. So stress and sleep. Sleep. Well, one has to have the adequate sleep for 6 to 8 hours so that your body is well maintained. And if you are having lot of stress is a major factor in these kind of populations. And then as I mentioned, especially in the females, in the childbearing age, the mother-in-law also comes कि पंजीरी खा लेते हैं, गुड़ खा लेते हैं, देसी घी खा ले. And ultimately once and fat जो है ना मैं कहता हूँ बहुत डीट है. Fat बहुत डीट है. Fat cells जो है वो once they increase, then they don't come back to whatever state they were. So our thinking should be कि पहले तो बढ़ने ही मत दो. अगर बढ़ रहा है तो उसको लगाम लगाओ और लगाम लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. और अगर बढ़ गया है तो जिसको कहते हैं ना कि वॉर फ्रंट पे आके उसको रिड्यूस कर दो. नहीं तो धीरे धीरे कि कल से करूंगा एक्सरसाइज, परसों से शुरू करेंगे, न्यू ईयर आ जाएगा तब शुरू करेंगे, कभी भी नहीं हो सकता. तो एक कॉमेडियन है जाकिर खान, अगर आपने कभी उनको सुना तो उन्होंने 2 साल पहले एक चीज बोली थी कि जिस बार नया साल 1 जनवरी और सोमवार तीनों एक साथ आएंगे तो जिम जाऊंगा. एग्जैक्टली. और वो 2025 में जब आ गया तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप जिम क्यों नहीं जा रहे? कह रहे हैं हमने बोल दिया था वैसे थोड़ा तुम कहोगे तो हम तुम्हारे लिए जिम चले जाएंगे. अच्छा लगता है ऐसे. इसके लिए ना मेरा एक बहुत ही वायरल हुआ था. जी. आई ऑलवेज टेल कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन वर्सेस, तो मैं हमेशा कहता हूँ चीनी, चिकनाई, चावल, चपाती, चारपाई और चिंता से दूर रहो. ओह क्या बात है. चीनी, चिकनाई, चावल, चपाती, चिंता और चारपाई से दूर रहो. फिर न्यू ईयर हो या कोई भी दिन हो, फिर क्या फर्क पड़ता है. फिर आपका न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर यार. हैप्पी न्यू ईयर एवरी डे. परफेक्ट. सो डॉक्टर साहब अभी हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल के बारे में, हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी के बारे में. ओबेसिटी के अगर आपको टॉप 5 रीजंस बताने हो तो वो क्या होंगे? Obesus is a Greek word and it comes from to eat more.
to eat more. Hmm. कहने का मतलब ज्यादातर लोग भ्रमित रहते हैं कि नहीं मैं तो खाती नहीं है कुछ भी, और मैं तो कभी कुछ भी नहीं खाया, The chai but the piti choice less than all. or but ultimately it is once you are eating more and you are spending less energy, Yeah. then it leads on to obesity. One. Second thing is definitely the metabolic changes. Metabolic changes जैसे आप अगर डायबिटिक हो, और सिमिलरली जैसे अब यंग फीमेल्स के लिए एंडोक्राइनल चेंजेस आ चुके हैं, Hmm. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आ गई है, उसकी वजह से ईस्ट्रोजन्स चेंज हो गए, ओबेसिटी की वजह से चेंज हुए, तो डेफिनेटली टिल्ट ओबेसिटी की तरफ चला जाता है। तो कहने का सारा मतलब यह है कि हमें सबको, ऑडियंस को ये समझ आना चाहिए कि मेल्स फीमेल्स मेटाबॉलिज्म एंडोक्राइनोलॉजी दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो भी हम सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं वो अपने जिप लगा सकते हैं, दांतों पे जिप लगा दें, सो कम से कम खाएं, और अगर खाना ही है तो क्वालिटी वाला खाएं, और एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे किसी तरीके से, चाहे जिमिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, व्हाटसएवर, बट वी शुड एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स सो दैट वी आर एबल टू मेंटेन आवर मसल मास। हमने अभी ओजेम्पिक की बात की, मोंजारो की बात की, और उसके बाद हमने सर्जरीज की भी बात की। क्या सर्जरी करवाने के बाद आपके रिजल्ट लाइफ लॉन्ग चलेंगे, परपेचुटी तक चलेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ज़्यादातर मरीज यही पूछते हैं कि अगर हमने ऑपरेशन करा लिया, चाहे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कराया या गैस्ट्रिक बाईपास कराया, तो क्या लाइफ लॉन्ग हमारा रिजल्ट वैसे ही रहेगा मैं जैसे कुछ भी खा सकता हूँ? कुछ भी खा सकता हूँ? यस। अब हमारा आंसर सिर्फ एक सिंपल होता है कि पहले 2 साल में जो लॉस होना है, मैक्सिमम लॉस वही होना है। अब ये मत सोचो कि 2 साल के बाद भी लॉस होता चला जाएगा। तो पहले 2 साल में आपने जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर ली, जो एक्सरसाइज कर ली, जो डाइट लेनी शुरू कर दी, जो प्रोटीन लेने शुरू कर दिए, तो वो अगर आप मेंटेन कर लेते हो तो ये ऑपरेशन बहुत कामयाब रहते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। मगर कुछ लोग हैं ऐसे, एक मैं आई शुड नॉट नेम हिम, बट मिस्टर खुराना वाज देयर। तो डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਵਿਸਕੀ ਲੈਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਡਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਆਈਸ ਪਾਣਾ, ਐਂਡ दैट्स इट, दैट इज द लिक्विड डाइट। सो व्हाट आई मीन टू से दैट इफ यू आर चीटिंग द ऑपरेशन, if you are taking carbohydrates, if you are taking alcohol, if you are taking girls start taking chocolates, तो अगर ये सारी चीटिंग करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आफ्टर ऑल स्टमक इज ए इलास्टिक ऑर्गन, धीरे धीरे करके एक्सपैंड करेगा। और उसके बाद अगर आपने मान लो 60% वेट लॉस किया था, पर अगर आपने स्टमक को धीरे धीरे बड़ा करना शुरू कर दिया तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी नहीं भरा है, तो उसकी वजह से ओवर ईट करना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली 10% 15% बढ़ सकता है। तो वेट रीगेन इज नोन आफ्टर द सर्जरी इवन इफ यू आर चीटिंग द ऑपरेशन, बट इफ यू आर कंप्लाइंग, कंप्लायंस अच्छी है आपकी, आप डॉक्टर को भी रेगुलर मिल रहे हो, टीम से भी मिल रहे हो, और बेसिक जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एक्सरसाइज है, डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन है, सबसे रेगुलर चेक मिल रहे हो, फिर डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग चलती है। देखो, एक तो तरीका आपने ओबेसिटी को चेक करने का बताया कि आपने बीएमआई चेक कर लिया। लेट्स से आपको विजिबल इसके जो चेंजेस आपके बिहेवियर में दिखेंगे, वो क्या चेंजेस होंगे? पॉजिटिव एनर्जी, बस वी से दैट सेल्फ बॉडी इमेज, मोस्ट ऑफ टाइम्स यू विल सी कि ओबीस पर्सन होगा ना, थोड़ा सा कोने ढूंढेगा। पार्टी में अगर कहोगे कि डांस कर तो कहेगा नहीं नहीं मैं क्यों डांस करूं, मतलब व्हाट आई मीन टू से ही और शी विल Be स्टार्ट shy. कि शाई अवे, but as they start losing weight 10% even, then they are full of confidence कि अब उनको लगता है कि यार 10% 20% 30% हो जाएगा मेरा, फिर तो मैं आई विल बी द अल्टीमेट जिसको Star. हाँ, तो वो इसलिए वो सब सारी कहानी सेल्फ बॉडी इमेज की है। once the self body image improves, then their confidence boosts up and they are able to do wonders। लेट्स से मैंने अपनी 8 आवर्स की स्लीप भी ट्रैक पे कर ली, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर लिए, पर मैं रहता दिल्ली में हूँ और दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है। क्या पॉल्यूशन ओबेसिटी को इम्पैक्ट करता है? थोड़ा सा, बट आई वुड नॉट से ओवर स्ट्रेस नहीं मैं करना चाहता कि क्योंकि हम सब जो हमारी जो क्लास है, हम एसी में रहते हैं, एसी गाड़ियों में, एसी जगहों पे रह रहे हैं, एसी में काम करने जाते हैं। ठीक है, पोल्यूशन है दिल्ली में, बट मोर इज इन माइंड It's in the रादर देन और उसकी वजह से यस इट हैज बीन सीन कि द पोल्यूशन आल्सो इफेक्ट्स ऑन द फैट सेल्स Yeah. और दैट लीड्स ऑन टू मोर चांसेस ऑफ ओबेसिटी, बट आई वुड से कि कुछ परसेंटेज, ये नहीं है कि हर एक कोई Less than 2%. less than not even 2%, not even 2%. So stress should not be given onto pollution, but it is the mind pollution which works। So in the last 20 years, this technology, the awareness, everything has exploded
There is so much information everywhere. If I am a doctor who is studying this as a subject, what are the 3 or 4 books I should refer to know more about this subject in detail, About in the layman language, in the layman language? I will not label it as there is a complete book on this. Okay. I would say कि today, for example, if you go to Chat GPT, Yeah. you can ask, but this is called as prompt engineering. Yes. So you have to do a good prompt engineering. Yeah. तो अगर आप जाके पूछते हो कि क्या ये ड्रग्स जो अभी शुरू हुई हैं ये सेफ है, then answers will be different. Yeah. क्या ये सर्जरीज सेफ हैं या कितने % में कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? तो व्हाट आई मीन टू से दैट इट इज यू हैव टू कोलैबोरेट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड देन मेक ए डिसीजन रादर देन रीडिंग वन बुक. वन Yeah. बुक डज नॉट मेक ए स्वेलो. कि वो ऐसा नहीं होएगा कि एक बुक पढ़ ली बस आज तो मैं ज्ञानवान हो गया. तो जैसे आप अभी एआई की बहुत अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, ये मुझे लगता था ये टेक वालों का टॉपिक नो नो आप तो डॉक्टर हो, हमारा तो आप लोग कैसे यूज करते हो प्रॉम्प्ट्स को? बहुत ज़्यादा. मैं कैन यू इमेजिन कि आई स्पीक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो. Wow. आई गिव लेक्चर्स. टुमारो आई एम इन अहमदाबाद स्पीकिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओह वाओ. एंड उसमें क्या है ना कि जैसे हम लोगों को इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड. ट्रू. तो अब अगर मुझे एज ए सर्जन, एज ए रोबोटिक सर्जन, एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन, इफ आई आर नॉट अपडेटेड तो और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अपने यंगर सर्जन्स को नहीं दे रहा हूँ तो आउटडेट हो जाऊंगा. तो उसके लिए फॉर एग्जांपल देयर इज ए कॉल्ड एज ओपन एविडेंस. सो आई कंसल्ट ओपन एविडेंस ए लॉट. और उसमें हमें रेफरेंस भी मिलते हैं, पब्लिकेशंस के भी रेफरेंस मिलते हैं कि ये आर्टिकल इस किताब में, इस जर्नल में था और इसका ये इन्फ्रेंस था, इसकी वजह से ऐसे ऐसे. तो आवर थिंकिंग इज आई स्टार्टेड विद चैट जीपीटी, देन आई वेंट ऑन टू परप्लेक्सिटी, देन आई वेंट टू ऑल काइंड ऑफ All these platforms, and ultimately my mindset is everything is going to change very fast. Yeah. In software engineering, software side also, जी. in our side also, it has changed a lot, and it is going to change the whole scenario. And now most of times when the people come to me, patients come to me, सर हमने गूगल सर्च किया है और उसमें ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ. मैं कहा वेरी गुड वेरी गुड. तो गूगल सर्च में देखा कि लीक भी हो सकता है नास्मोसिस. कहते हाँ वो भी लिखा. मैं कहा यस देयर इज अ 1% चांस. गूगल सर्च में लिखा डेथ भी हो सकती है. कहते यस लिखा हुआ. मैंने कहा यही तो है. आई टेक द एडवांटेज ऑफ योर सर्च ऑन गूगल और चैट जीपीटी एंड देन गिव देम द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. वेरी नाइस. दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडल्जेंस इनटू इट. सो आप डॉक्टर ज्यादा, एजुकेटर ज्यादा हो चुके हो अभी. सो आप डॉक्टर कम और एजुकेटर ज्यादा हो चुके हो इस समय. मैं इसको ना ऑनेस्टली एक छोटे से एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा. मेरे सिस्टर है, उनकी बेटी शी गॉट एडमिटेड इनटू एमबीबीएस. तो मैंने बेटी वो आशीर्वाद लेने आई कि माँ जी आप आशीर्वाद दो. तो मैंने कहा बेटा आशीर्वाद तो मैं दूंगा, डॉक्टर तो तू बन ही जाएगी. अब तो एमबीबीएस में एडमिशन हो रही है तो डॉक्टर तो बन जाएगी. एक गुड ह्यूमन बीइंग बनियो. तो माई फीलिंग इज दैट आई हैव बिकम ए डॉक्टर if I am having that pain which you are having, if I am able to understand that pain, and if I am having that not sympathy, not empathy, but much more beyond that, that is a doctor. कि that conveys कि यार जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर आपका कोई दर्द है तो मैं कहूँगा हमारा दर्द कैसा है. हमारा दर्द में तब समझ आती है मरीज को और सभी को एज ए ह्यूमन बीइंग. मोस्ट एंड देयर इज अ वेरी जो फार्मूला 1 रेसिंग कार ड्राइवर्स बहुत कम है, बहुत ही कम है. क्यों? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि इतनी फास्ट चला भी सकते हैं. तो मुझे लगता है कि डॉक्टर बनने के लिए गुड ह्यूमन बीइंग बनना पहले जरूरी है, फिर साथ में नॉलेज होना जरूरी है, फिर ऑब्वियसली एक्सपर्टीज धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाए. देखो आम जनता को ना डॉक्टर बनने की नॉलेज मिलती है मूवीज वगैरह से काफी बार. ट्रू. और 60s 70s 80s की जब आपने पिक्चरें देखी होंगे या जब मैं पैदा हुआ मैं जो देखी होंगी उसमें कहते हैं डॉक्टर की एक लाइन होती थी, अब मरीज को दवा नहीं दुआ की जरूरत है. ठीक है. अभी फिर हम आए आगे संजय दत्त की मूवीज वगैरह, तो मुन्ना भाई के अंदर बमन ईरानी जी का एक डायलॉग है इनिशियल फेज में, आई डू नॉट लव माई पेशेंट्स कंफ्यूज्ड, आई एम हेयर टू इंश्योर दैट आई ट्रीट माई पेशेंट्स. सो आपकी जो थ्योरी है कि अच्छा इंसान बनो पहले, ये से काफी अलग है. हाँ राइट. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसके लिए ना मेरे टैगलाइन अगेन एक टैगलाइन है और मेरे हॉस्पिटल भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल के जो फोल्डर है उस पर भी लिखा हुआ है, टू बी ट्रस्टेड is a greater compliment than being loved. Beautiful. To be trusted is a greater compliment than being loved. And if you have trusted me, and if I am not reciprocating that trust, that means I am proving you blind.
तो मेरी फिलॉसफी ये है कि यार हमें तो दुआएं लेनी है एज ए डॉक्टर, एज ए सर्जन। पैसा भगवान दे ही रहा है, दिया, इतना दिया हुआ, इतना शुक्र करते हैं, उतना उससे भी ज़्यादा दिया हुआ है। मगर जो दुआएं ले लेते हो लोगों की, और जो वर्ल्ड ओवर जब मैं जाता हूँ और हर जगह पे कोई ना कोई मिल, डॉक्टर साहब तूने तुसी तो मेरा ऑपरेशन किया हुआ, तुसी तो मेरा यह किया हुआ, तो दैट गिव्स अस ए ग्रेट फीलिंग। एंड कि अल्टीमेटली दे हैव ट्रस्ट, यू हैव ट्रस्टेड मी, and I have reciprocated that trust also, and I have given my best. I have given. इसके लिए ना मैं एक स्टोरी है मेरी, जी and I am famous for Sunday stories. एक मेरा एक XYZ हॉस्पिटल, आई विल नॉट नेम दैट हॉस्पिटल, उसमें एक ओबेसिटी का पेशेंट था इसी कॉन्टेक्स्ट में, 180 kg उसका ऑपरेशन हुआ, और ही वाज द सन, ही इज द सन ऑफ IG पुलिस। और एक दिन फ़ोन आया मेरे एक फ्रेंड का कि एक पेशेंट है जो एक्स हॉस्पिटल में ऑपरेट हुआ है, और वो ना काफ़ी सिक है, तो आप देख सकते हो। मैंने कहा मैं गंगाराम में देख सकता हूँ या वाडिया ग्लोबल हॉस्पिटल में देख सकता हूँ, बट आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू विजिट द पेशेंट, इन आई डोंट हैव द राइट्स। तो आप अगर लाना चाहते हो तो पेशेंट को मेरे हॉस्पिटल में ले आओ। और उनका नाम, पेशेंट का नाम था संग्राम सिंह। तो उन्होंने मेरे पास गंगाराम में लाए, ही वॉज क्वाइट सिक, एंड इफ आई ऑपरेट द सेम डे ही इज डेड। मैं इतना सिक था। खैर धीरे करके मैंने मैनेज करना शुरू किया। और कैन यू इमेजिन कि प्रीवियस हॉस्पिटल का जो सर्जन था उसने पेशेंट को फ़ोन किया, IG पुलिस को फ़ोन किया कि सर जो वहाँ पे गंगाराम में जैसे डॉक्टर भाटिया कर रहे हैं वो ठीक नहीं होएगा। तो उनका आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम टेलिंग यू। हिज आंसर वाज कि हमने डॉक्टर भाटिया को देखा है, रोज़ बंगला साहब गुरुद्वारे जाते हैं, एवरी मॉर्निंग ही गोज़ टू गुरुद्वारा, एंड ही प्रेज फॉर हिज पेशेंट्स। तो हमें पूरा फेथ है डॉक्टर भाटिया पे, ट्रस्ट है पूरा, और रब पे विश्वास है। ही वाज ए कार्ड सर्टिंग, तो रब पे पूरा विश्वास है, तो ठीक होना चाहिए। एंड वुड यू बी सरप्राइज, 45 days आफ्टर द ICU केयर ही वाज डिस्चार्ज होम, एंड टुडे ही इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो मेरा संग्राम अभी भी जारी है। आई ऑलवेज थिंक लाइक दैट कि ये संग्राम ही तो है, कि अल्टीमेटली इफ यू आर giving those kind of solace to these kind of patients, that is a संग्राम। और अगर वो ट्रस्ट करते हैं मेरे पे और मैं अपना 100% से भी ज़्यादा देता हूँ, दैट मैं तो, मेरे से ज़्यादा क्या कौन खुश हो सकता है? बिल्कुल, दवा और दुआ दोनों ही आप ला दोनों रहे ही ला रहे हैं। और तीसरी बात, मैं हमेशा अपने यंगर लोगों को, यंगर बच्चों को, ये सर्जन्स को कहता हूँ कि यार तुम पेशेंट्स तो तुम्हें पैसे भी दे रहे हैं, अपने आप के ऊपर ऑपरेशन करने के पैसे भी दे रहे हैं, तो तुम्हारे से ज़्यादा भगवान और क्या देगा, किसी को क्या देगा? तुम्हें तो एक तो ठीक करने की एक तरीका बताया उसने, और ऊपर से उसको पेमेंट भी दे रहे हैं, तो और इससे ज़्यादा क्या शुक्र करोगे? और ठीक होने के बाद दुआएं भी दे रहे हैं। दुआएं भी दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली आई थिंक आई एम द मोस्ट सेटिस्फाइड पॉजिटिव डॉक्टर। आई फील लाइक कि इतना कुछ हम करते हैं और इतना भगवान का शुक्र करते हैं, 24 घंटे शुक्र करते हैं कि इतना अच्छा हमारे हाथों ठीक हो जाते हैं और आगे दुआएं देते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ साल पहले ना कोविड आया था, और डॉक्टर्स के लिए जितनी रिस्पेक्ट एक आम आदमी के दिन में उन दिनों बनी थी, वो आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में अनपैरेलल्ड देखा, मतलब उससे ज़्यादा कभी नहीं देखा। तो आपको अपने उन दिनों की कोई बात याद है, कोई एक बहुत सीख सारी, बहुत सारी। मैं साफ कहूँगा कि मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त मुझसे ही पूछते हैं कि आपको कोविड के बाद 360 डिग्री चेंज होते हुए देखा है हमने। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, देखा है, क्योंकि क्या हमने चेंज था वो? वो चेंज ये था कि वी आर वर्किंग वेरी क्लोज टू डेथ। एज ए सर्जन ऑल्सो वी वर्क वेरी क्लोज टू लाइफ एंड डेथ। बट इन कोविड एरा दोनों जगह पे, भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में भी, गंगाराम हॉस्पिटल में, वी आर डीलिंग विद सो मेनी कोविड पेशेंट्स, नो मनी कुड गिव देम लाइफ, नथिंग। एंड बट उसी समय मुझे ख्याल आया कि जिंदगी में जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी तो इम्पोर्टेंट थी, और आज तक हमने सर्जरी करी और सर्जरी से बड़े खुश हो जाते थे कि 8-8, 10-10 सर्जरी रोज़ की करी और शाम को सोते हुए बड़ा मज़ा आता था। बट देन आई रियलाइज्ड ड्यूरिंग कोविड टाइम्स कि लिविंग लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, एवरी मोमेंट हैज़ टू बी लिव्ड। उसके बाद डेफिनेटली वर्क लाइफ बैलेंस पे मैंने बोलना शुरू किया, लेक्चर देने शुरू किए, और अब नाउ एनी एंड एवरी पर्सन इज सरप्राइज्ड कि जो बंदा सिर्फ सर्जरी की बातें करता था, अब वो लाइफ के बारे में बात करता है। तो मेरे लेसन ये हैं, क्योंकि हम इतने क्लोज गए डेथ के और ज़िंदगी के, और तो उससे बहुत कुछ सीखा कि यार सबसे पहले अपनी काया है, अपनी हेल्थ है, दैट इज़ दी। बाकी करोड़ों रुपए इधर रखे रह जाएंगे, कुछ नहीं होएगा उसका अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो अगर हेल्थ अच्छी है तो आप सब कुछ कर सकते हो।
तो इसी यही सेम मैं पेशेंट्स को भी यही कहता हूँ कि मैंने इतना सीखा है, तो आप जो है बीमारी को दूर करो और उसके बाद अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, सो दैट अल्टीमेटली यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, यू आर एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सो गिविंग बैक टू द सोसाइटी हैज इंक्रीज्ड पर्सनली इन मी। मुझे लगता है कि अब ये छोटे मोटे पैसे वैसे फीस वीस ये ठीक है यार, ये तो अलग, पर जितना मैं सुख दे सकता हूँ किसी को और दे रहा हूँ, जितना ज्ञान दे सकते ज्ञान दे सकता हूँ, जितनी सेवा कर सकता हूँ, जितना, और अस्पताल वाले भी सारे इन्वॉल्व होते हैं कि यार इनको हमने अपना बेस्ट देना है, हमने अपना बेस्ट देना, वो एक जीत है। तो हमारे पास एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर शनिलाल आयजू, वो दुबई के अंदर एक है एस्टर मेडकेयर, वहाँ की ग्रुप सीईओ। तो वो कहते हैं कि जब मैं अपने पेशेंट से बात करती थी ना, तो कहीं न कहीं मेरे पेशेंट्स, मेरे एम्प्लॉइज़, मेरे टीममेट्स मुझे ना अपना थेरेपिस्ट समझने लग जाते थे और वो मुझे काफ़ी सारी ऐसी बातें बताते थे जो अपने घरवालों को नहीं बताते। एब्सोल्युटली, आई फुली एंडोर्स दैट पॉइंट। अभी मैं एक मैरिज में गया और वहाँ पे भी इसी तरीके से बैठे हुए थे, सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो एक वन ऑफ द डॉक्टर्स, शी हैड आल्सो कम इन द सेम मैरिज, तो उसने कहा सर मैं देखती हूँ कि आप तो वो जितने भी वर्कर्स हैं कैफेटेरिया में भी उनके साथ भी बड़ा अच्छा कर, तो यू आर ए हीलर नॉट ए डॉक्टर। या And honestly, I believe that कि our role is as a healer rather than anything else। कि मैं, आप ये सोचो, एक छोटा सा अगेन एग्जांपल्स, जी, ललित होटल ललित जी, श्रीनगर में जी। कॉन्फ्रेंस करने गया मैं, वहाँ रहा, तो मैंने शेफ को बुलाया और शेफ को बुला के मैंने कहा कि आज ना मुझे चाय पिलाओ तड़क। तो कहते, मैंने कहा चाय में क्या डालोगे? तो कहते हैं कि सर हम पत्ती डालेंगे। मैं कहा वो तो हर कोई डालेगा, आप क्या डालोगे? कहता मैं केसर डालूंगा, क्योंकि श्रीनगर का केसर बड़ा केसर फेमस है, मशहूर। केसर की क्यारी है, तो केसर डालूंगा। मैं कहा और क्या डालोगे? कहता गुड़ डाल दूंगा। मैं कहा और क्या डालोगे? पर ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा उसमें ना प्यार डालना, प्यार डाल देना। प्यार डालना, और जब तुम प्यार डालोगे तो चाय का मजा आ जाएगा। और वो थोड़ी देर बाद चाय लेकर आया और बहुत मजा आया, सच में मजा आया। अगले दिन सुबह मैं गया, कहता सर वो प्यार डाल के मैं चाय अभी ला रहा हूँ। तो ले आया। तीसरे दिन व्हेन आई वाज चेकिंग आउट फ्रॉम द होटल, आई हैड डन वर्कशॉप्स इन श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, तो जैसे ही मैं चेकआउट कर रहा था तो पता लगा कि पूरा पूरा शेफ और पूरी टीम लेके रिसेप्शन पे आ गए। सर अगली बार जब आओगे ना तो हमारे यहीं पे ठहरना, और कहीं नहीं, प्यार वाली चाय। प्यार वाली चाय मिलेगी। क्या बात है। तो थोड़ा से प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, खुशियां बांटते चलो, खुद खुशियां मुफ्त मिलेंगी। आप शाहरुख खान वाली वाइब दे रहे हो बहुत ज़्यादा, जियो, हँसो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। कल हो ना हो, सही बात है। और मेरा तो सिंपल थॉट्स ही यही है, लाइफ के लिए थॉट्स ही हैं कि यू नेवर नो टुमारो इज देयर और नॉट। स्टीव जॉब्स, मेरा स्टीव जॉब्स फेवरेट है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली उसकी ये बात जब समझ आ जाए ना कि कल हो ना हो, और आज का दिन बेस्ट जी लो, आज का मोमेंट बेस्ट जी लो, बस इतना ही बात है। वो अपने आप ही जिंदगी बहुत पॉजिटिव हो जाती। एंड आई ऑलवेज से नेगेटिविटी इज ए डिजीज, शन इट। जहाँ जहाँ नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनसे मैं दूर भाग जाता हूँ, हाँ। दूर ही भाग जाता हूँ, यार इनसे तो बात ही नहीं करनी ना। सो मेरा पता क्या मानना है, जो आपकी तरह के लोग होते हैं ना, वो अपने हम उम्र लोगों के साथ नहीं बैठते, क्योंकि अगर उनके साथ बैठेंगे, आज मेरे यहाँ दर्द हो गया, आई नो। आज मेरे वहाँ दर्द हो गया, मेरी बहू ने ये कर दिया, मेरे बेटे ने ये कर दिया, तो आप मोस्टली यंग लोगों के साथ दिखोगे। Am I right? यू आर राइट, एब्सोल्युट। मेरी एक वीकनेस है और बड़ी स्ट्रांग वीकनेस है कि मैं नॉन इंटेलिजेंट पीपल को टॉलरेट ही नहीं कर पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाते। बर्दाश्त ही नहीं कर पाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम टू हैव, गुड प्रॉब्लम टू हैव। गुड प्रॉब्लम टू हैव इंडीड। सो आप हमेशा से इतने खुश मिजाज से, या कोई कोविड के अलावा कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने आपको कहा कि यार स्विच ऑन? नो, यस यू आर राइट कि कई लोगों में, और सच में जैसे आपने शुरू में मेंशन किया था ना कि व्हेन यू मीट देम देन यू आल्सो रियलाइज कि यार दीज आर द पीपल आई शुड कैरी ऑन टॉकिंग टू। ट्रू। एंड some people bring happiness when they come, some when they go। या तो आई शुड बी वन जहाँ मतलब एक बार बैठ गए, अगर हम आपस में बात भी कर रहे हैं तो खुशियां ही खुशियां होनी खुशियां चाहिए, ही चाहिए। खुशियां होनी चाहिए। लाइफ का कुछ नहीं पता, शुक यू आर गॉन, या शुक यू आर गॉन। सो अल्टीमेटली थॉट्स आर कि नहीं, मैं तो हर पल को जीता हूँ, हर मतलब सेकंड को जीता हूँ, और हर सेकंड खुशियां बांटने की कोशिश करता हूँ। चलो, एक ना बहुत मजेदार थॉट है, और मतलब इस थॉट के जो आप और मैं शेयर करें उसका बहुत विपरीत थॉट है ये, कि जिन लोगों को खुशियां बांटने की आदत होती है ना, उन्होंने बहुत रेगुलरली वो लोग अपनी खुद की डेथ के बारे में सोचते हैं, राइट? तो क्या आपने कभी ऐसा कुछ सोचा कि यार एक दिन मैं नहीं रहा तो हाउ डू आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड? यस, एब्सोल्यूट, फैंटास्टिक क्वेश्चन। मुझे लगता है कि लिगेसी छोड़ के जाना है।
और क्या लेगेसी होनी चाहिए? लेगेसी ये होनी चाहिए कि यार ये ना कहें कि उनके पास सर्जन अच्छा था, तो ये ना कहें। ये तो कोई ना कहे यार, वो ये सभी ये सोचेंगे कि यार ह्यूमन बीइंग अच्छा था, मतलब जिस जहाँ पे भी जाता था पॉजिटिविटी स्प्रेड करता था, जिंदा दिल जिंदा दिल इंसान था जहाँ भी। और सच में कहीं पे भी जाता हूँ, कोई भी पार्टी होती है तो उसमें सबसे ज्यादा जो जोर से हंस रहा होता है वो मैं होता हूँ, ठाका मार के हंसता हूँ, तो सारे बंदे इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या भगवान ने दे दिया, पंजाबी लाफ। पंजाबी लाफ्टर है तो क्या दे दिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ने की देता है। मैं कहता हूँ की नहीं देता है, हाँ। सब कुछ दे देता है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। तो my feeling is that I become the energy of the party and I leave that energy for people to remember कि so that ultimately सब, और कहीं पे भी ये नहीं है कि सिर्फ अस्पताल, मैं अस्पताल में भी जाता हूँ सबसे छेड़ता रहता हूँ, लिफ्ट वाले को भी छेड़ता रहता हूँ, और भाई बच्चे ठीक है ना, फर्स्ट क्लास चल रहे हैं ना, कोई बताना मुझे कोई काम हो तो what I mean to say, I spread happiness and our thinking is that people should remember that a happy man has gone and he has left a legacy, and that is the reason that I do podcast, that is the reason that I do Sunday stories, so that people get inspiration। और मैंने जैसे आपको बताया था, my motto of life is inspire or expire, कि इंस्पायर कर पाऊँ अगर मैं यंग जनरेशन को या दूसरे लोगों को, दैट्स इट, माय जॉब इज डन। और हम सब ही थोड़ा थोड़ा ही करते चले जाएं तो बहुत अच्छा प्लेनेट है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो हमेशा खुश रखने की और खुश रहने की। काफी लोग जो आपकी तरह सोचते हैं वो इस सोच को शब्दों में नहीं पिरो पाते, और वो यही सोचते रहते हैं चार लोग क्या कहेंगे। तो आपने मुझसे काफी ज्यादा लाइव देखे, तो कौन है ये चार लोग और क्या सोचते हैं ये? वो कहते हैं ना सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग? तो माय थिंकिंग इज आई एम लीस्ट बॉदर्ड, लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस एस्पेक्ट कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो ये सोचता हूँ कि यार मैंने अच्छा काम करना है, मैंने अपना बेस्ट देना है। When the best is possible, good is not good enough. या I give my best. सर्जरी में जब कर रहा होता ना तब मेरा दिमाग में होता है एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। सीरियसली, मतलब आई ऑलवेज टेल माय यंगर कोलीग्स कि एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, इतनी अच्छी परफेक्शन वाली सर्जरी करूं सो दैट अल्टीमेटली पेशेंट को कोई भी तकलीफ ना हो, अगर उसको कोई दर्द है तो मेरे को ज्यादा दर्द होनी चाहिए, बस दैट्स इट। तो उससे मेरा एटीट्यूड जो है बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन दैट आई एम हैप्पी गो लकी एनी टाइम एंड एवरी टाइम। डॉक्टर साहब, एक परसेप्शन है कि पतले लोग का मतलब होता है हेल्दी लोग, क्या ये सच है? मैं ये कहूँगा कि नहीं, सच नहीं है। पतले लोग भी बीमार हो सकते हैं और बीमारियां कई किस्म की हो सकती हैं, तो बीमारी रहित होना और खुश रहना वो एक प्रायोरिटी होनी प्रायोरिटी चाहिए। होनी चाहिए। आप मूवीज देखते हो? कभी कभी यस। कौन सी पिक्चर देखी आपने लास्ट? बैंडेड लाइक बेकम, क्या? मतलब मोटिवेशनल टॉक। मैं अभी मैं धुरंधर भी देख के आया अच्छा और मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा। बड़े लोगों ने कमेंट किया और हॉल में गया हाँ। और काफी लोगों ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री जैसी है, पर मुझे लगा कि दी प्लॉट विच दे हैव सेट इन एंड दी एक्टिंग ऑफ एवरीवन, मतलब Yeah. क्या रणबीर की एक्टिंग और अच्छी एक्टिंग थी, हम्म, मुझे बहुत मजा आया। मुझे बहुत अच्छा। अब मुझे मोटिवेशनल मूवी, और मेरे साथ में ना एक क्राइटेरिया है, Yeah. मेरे बेटे दोनों यूएस में है, तो रोबोटिक सर्जन है और उसकी वाइफ जो है गायनेकोलॉजिस्ट है, दूसरे वाला भी रोबोटिक सर्जरी कर रहा है। तो कैन यू इमेजिन कि जब तक वो ना कहे ना कि ये आपके लिए अच्छी होगी मूवी, तब तक मैं देखता नहीं। और कहने का उन्होंने मतलब बोला हाँ, कि जब उन्होंने कहा कि हाँ ये मोटिवेशनल मूवी है और आपको जरूर देखनी चाहिए, तो मैं गया। तो 2 फिल्टर लगे मैं आप पे तो पहले। फिल्टर लगे हो। तो तो अच्छे आपको क्या लगते अच्छा लगा उस पिक्चर के अंदर? मूवी में लगा कि प्लॉट कितना अच्छा था, थॉट्स कितने अच्छे थे, एक्टिंग कितनी अच्छी थी, और हर एक ने अपना रोल को जस्टिफाई किया। मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल एज आई वाज टेलिंग यू कि जैसे मैंने कल लेक्चर देना है, तो मैं जब लेक्चर देता हूँ तो मैं अपना जस्टिफाई करूँ रोल को। अगर मैं मॉडरेटर हूँ तो जस्टिफाई करूँ, अगर मैं चेयरपर्सन हूँ तो फिर आगे स्पीकर को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलने तो आई शुड जस्टिफाई माई रोल। सो आई थिंक दी ऑल दी क्रू मेंबर्स जो एक्टर्स थे सभी लोग उन्होंने अपना रोल जस्टिफाई किया। तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि कल अहमदाबाद के अंदर आपकी एंट्रेंस वो ब्लैक पटना लगा के वैसे होने वाली है? गुड वन, Flipper Archie. आई विल सेंड यू द वीडियो। I'll wait for that actually because I recently shot something similar. अरे वेरी गुड, So let's merge that sometime. वेरी गुड, That would be a great idea. एक्सीलेंट। आपके गॉगल्स डाले में I know, that's a fantastic. और उसमें इस कॉन्फ्रेंस में कैन यू इमेजिन, आई विल सेंड यू श्योर, आई एम द सूत्रधार, अरे वाह, बहुत ही है ना, अच्छे। सूत्रधार। मुझे उन्होंने सर्जन का तो ठीक है जो है सो रोल मेरा लेक्चर है, पर सूत्रधार बना के पेश किया कि मैं अरे को कनेक्ट करूंगा और विद माय स्टोरीज विद मोटिवेशन, है ना। तो उसमें यस मैं पहला स्टेप ऐसे ही करूंगा कि गॉगल्स बहुत ही सही लाइन वाले हैं। तो जैसे मुझे ना आपसे जितनी बार भी बात कर रहा हूँ मुझे सर्जन वर्ड जो है ना, सृजन वर्ड ज्यादा सुनाई दे रहा है।
तो ये आपके बोलने का तरीका है या आप एक्चुअली बिलीव करते हो कि सर्जन जो है वो आपको दूसरा जन्म दे देते हैं? नहीं देते। मुझे तो लगता है कि देखो अल्टीमेटली जो भी चीज़ कर रहे हो, अब अगर आप अपना पॉडकास्ट कर रहे हो या मैं सर्जरी कर रहा हूँ, तो मुझे अपना बेस्ट देना ही था। और मैं एक और स्टोरी सुनाता हूँ कि जी। मैं जो है ना स्कूल के अंदर जब मैं मैथमेटिक्स में आई यूज्ड टू राइट एट द एंड ऑफ द पेपर कट 1 मार्क इफ पॉसिबल। हो एरोगेंस। नॉट एरोगेंस, इट वाज अगेन मैंने अभी ऑपरेशन कर रहा था, तो टीचर मैंने कहा क्या करती हो? कहते मैं मैथमेटिक्स की टीचर हूँ। मैंने कहा मेरे मैथमेटिक्स में कभी भी 99 नहीं आए थे, 100 आते थे। क्या बात एंड आई यूज्ड टू राइट एट द एंड ऑफ द पेपर कट मार्क। कहती हो आप ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ। मैंने कहा मुझे झूठ बोल रहा हूँ। कहती नहीं झूठ भी क्यों बोलोगे? झूठ भी क्यों बोलोगे? मोटिवेशन तो नहीं कह है। रहे वो मोटिवेशन तो नहीं है इस जगह पे। और एनेस्थीसिया में इतनी देर में एनेस्थीसिया हो गया, ऑपरेशन कर लिया। 1 हफ्ते बाद फिर आई, कहती मैं गॉल ब्लैडर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा हो गया ऑपरेशन, बहुत अच्छा। लेकिन लेकिन मेरा मन में हमेशा वही चलता जा रहा है कि आप ऐसे कैसे लिख सकते हो? मेरे को 24 साल हो गए पढ़ाते हुए मैं और भी कहीं नहीं मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जो कह सके कि एक भी नंबर काट के दिखाओ। तो मैंने कहा मैं कैसे लिखता था आप बताओ? तो कहती है कि नहीं मुझे नहीं समझ आया। मैंने कहा सिंपल, most of the people, you are a science graduate, Yeah. so most of the people will attempt the question and then reach the answer, Yeah. and they will check from question Steps ठीक है कि नहीं है? steps ठीक है ना। मैंने कहा मैं कभी चेक ही नहीं करता था, मैं नीचे से ऊपर चेक करता था। आई यूज टू वर्क बैकवर्ड्स, कि जब पीछे से जब चलना क्वेश्चन तक पहुंच गया, आंसर से अगर क्वेश्चन पहुंच गया तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं रह गया ना, फिर तो 100% देने ही पड़ेंगे आपको। तो दैट इज द फिलॉसफी कि मैं ऑपरेशन में भी मेरे यही फिलॉसफी है, कोई भी काम करने में यही फिलॉसफी है कि यार अपना बेस्ट देना, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। शादी अगर बच्चे की करी तो उसमें भी एक भी नंबर कटेगा नहीं, मतलब सबको जिसको बुलाना है पर जो भी करना है बेस्ट कर रहा है। दैट इज द फिलॉसफी एंड दैट अल्टीमेटली मेक्स मी गोइंग एज सिंपल एज दैट। सो जब हम हेल्थ की बात करते हैं, मूड की बात करते हैं, एक सर्टेन एज की बात करते हैं, obesity after a certain age becomes more like that it's the body that is dragging me, it's not me who's dragging the body. वो कौन सी एज है जिसके बियॉन्ड आपको लगता है कि हम ओबेसिटी को ट्रीट ही नहीं कर सकते? नो, एज इज नथिंग बट ए नंबर। ओके। एज इज नथिंग बट ए नंबर। अभी रिसेंटली आई हैड एन एक्सपीरियंस कि 79 ईयर्स ओल्ड ही सेड कि डॉक्टर साहब मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ। पंजाबी थी, बहुत दुखी हो रहा है और मोटापा सी। और आई सेड यस आई हैव ऑपरेटेड एट द एज ऑफ 83 आल्सो फॉर ओबेसिटी and I operated maybe 15 days back only, and he's doing absolutely fit and fine. So it is all a state of mind. Our thinking is it is always a state of mind. 16 साल के बच्चे को भी उतनी परेशानी है जितनी 70 साल के बंदे को भी है। तो अगर उनको तकलीफ दे रहा है, अगर जोड़ तकलीफ दे रहे हैं, अगर बैक तकलीफ दे रहा है, अगर सांस में दिक्कत हो रही है, तो why should he not go in for a solution? You never know how many years he is going to live. Yeah. Our thinking is you cannot become God. You cannot decide on the behalf of the patient also कि जी आपके तो 2 साल ही रह गए बस। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर जितने भी साल रह गए क्वालिटी की लाइफ जियो ना। अगर क्वालिटी की लाइफ जियोगे तो ठीक है, उतनी ही लाइफ अच्छी तो बिताई ना आपने। तो 79 पे भी मैं ऑपरेट करता हूँ और 16 पे भी ऑपरेट करता हूँ। तो एज इज एज इज नथिंग बट इट इज योर हैबिट्स, लाइफस्टाइल, इन सब से फर्क पड़ता है। इनसे फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब आप बहुत खुश मिजाज और एकदम हैप्पी गो लकी पर्सन हो, पर मेरी ना एक और सोच है लाइफ में कि खुश तो लोग भगवान से भी नहीं है। तो जो लोग आपसे उदास होते हैं वो क्यों उदास होते हैं और वो क्या चीज़ है आपकी जो उनको उदास कर देती है? मुझे नहीं पता। और मैं तो सबसे पहले मैंने अभी बताया ना कि मैं चिंता ही नहीं करता उनकी। मैं तो अपने बारे में जा वो मेरे ना एक डॉक्टर बीएस राणा होते थे, मेरे जी। प्रोफेसर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में, जी। जहाँ से मैंने एमबीबीएस एमएस किया। तो वो हमेशा कहते थे काके तो दुनिया में सुधारन ते आया नहीं, हाँ। तो अपने आप में सुधार। हम्म। बस मेरी फिलॉसफी यही है कि मैंने अपने आप को सुधारते चले जाना है। even as you have rightly put, even God cannot please everyone. Yeah. And if I had to please everyone, तो फिर मैं आइसक्रीम पार्लर खोल लेता, Yeah. rather than डॉक्टर बनता या सर्जन बनता। तो my thinking is कि मैंने अपने आप को, रात को अच्छी नींद आनी चाहिए मुझे, बस। और मैंने अपना बेस्ट दिया है, इससे कम मैं दे नहीं सकता था। उसमें भी अगर वो खुश नहीं है तो नहीं है, और खुश है तो है, सिंपल। 2026, everybody is saying, is the year of transformation. A lot is changing in people internally, externally, globally. काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई यूएस के कारण, चाइना के कारण, इंडिया के कारण, दुबई, सऊदी अरेबिया, बहुत सारी ग्लोबल चीज़ें हो रही हैं। मेडिकल की फील्ड में और जिस फील्ड में आप स्पेशलिस्ट हो, उस फील्ड में अगले 3 साल के अंदर हम क्या चेंजेस देखने वाले हैं?
अगले 3 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खूब ज़्यादा प्ले करेगा और रोबोटिक सर्जरी विल बिकम द No. प्रेजेंट इज बिकमिंग द नॉर्म। तो ये होएगा। और चाहे वो रोबोटिक मोटापे के लिए हो, चाहे वो रोबोटिक गॉलब्लैडर के लिए हो, हर्निया के लिए हो, कॉम्प्लेक्स हर्नियाज के लिए हो, किसी सर्जरी के लिए हो, तो रोबोटिक सर्जरी इज गोइंग टू स्टे एंड इट हैज़ बिकम द प्रेजेंट रादर देन द फ्यूचर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कम समय में हम ज़्यादा क्वालिटी वाला काम कर पाएंगे। वो सबसे ज़्यादा चेंज करने वाला है, और चेंज वो- होने वाला है। और उससे क्या प्रिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ेगा? प्रिसीजन पे फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात है ना कि अब जैसे आप सबने देखा ही है एमबी स्क्राइब, जी। है ना, वी आर टॉकिंग एंड स्टिल एवरीथिंग इज बीइंग रिटन। तो ये जब सिचुएशन आ जाएगी कि मैं पेशेंट से सिर्फ बात ही कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर की तरफ नहीं देख रहा हूँ, बट सिर्फ बात ही कर रहा हूँ और वो उसी समय जॉट डाउन ट्रांसलेट होता चला रहा है, उसके बाद सिग्नेचर किया एंड दैट्स इट। तो ये जब इतनी डेवलपमेंट होती जा रही है विच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, इवन माई प्रिस्क्रिप्शन इफ आई एम राइटिंग विद माई हैंड बट स्टिल इट इज कमिंग इन अ टाइप मैनर, दैट इज गोइंग टू चेंज, दैट इज चेंजिंग। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो पॉजिटिविटी है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होएगी, नॉलेज गैप बिल्कुल कम होते हैं। आपको भी याद होएगा जब मैंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करी तो उस समय नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी में जाया करते थे एक जर्नल का एक आर्टिकल ढूंढने के लिए, और सारा दिन लग जाता था और वहां जब पहुंचते थे तो पता लगता था वही वाले पेज फटे हुए हैं जो आर्टिकल ढूंढने जाते थे। और आज की डेट में फिंगर टिप पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो इतना जब नॉलेज गैप, इंफॉर्मेशन गैप चेंज हो चुका है तो उसकी वजह से वर्ल्ड पूरा चेंज हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू बिकम द सुपर पावर। ये दुबई वगैरह सब पीछे रह जाएंगे। ये आप जब सुपर पावर की जो बात मुझसे कर रहे हो तो मैं ये आप बात कर रहे हो मेडिकल के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया के आगे जाने के लिए। एब्सोल्युटली और आपके अकॉर्डिंग क्या इंडिया आज ऑलरेडी वहां पर है? पहुंच चुका है, मैंने एक्चुअली प्रैक्टिस में मैं बहुत वर्ल्ड ट्रैवल कर चुका हूँ, करता हूँ एवरी नाउ एंड देन, बिकॉज मैंने बताया ना दोनों बेटे मेरे अमेरिका में तो और सर्जन हैं, इसलिए उनके थिएटर्स में भी जाता हूँ, उनका सब कुछ देखता हूँ। तो हम बिल्कुल एट पार हैं और कई चीज़ों में हम ज़्यादा आगे हैं। अच्छा, कई चीज़ों में क्योंकि इंडिया हमारा अमेरिका से काफी आगे है। अमेरिका से भी आगे है क्योंकि हमारे पास पेशेंट लोड है, और पेशेंट अभी भी ट्रस्ट करते हैं। वहाँ पे वो फिर भी डरते हैं कि कहीं कहीं कोर्ट केस ना कर दें, है ना, ये ना कर। तो हमारे यहाँ पे ट्रस्ट अभी भी विद्यमान है, मगर यस थोड़ा सा कम हुआ है। मगर हमारा एक्सपीरियंस जो इतने सालों, मेरे बेटा जब मैं वहाँ जब सर्जरी कर रहा था तो उसने कहा, एक उनकी प्रोफेसर आई और उन्होंने कहा न्यूयॉर्क में कि आई हैव सीन ए सर्जन हु इज इंडियन सर्जन हु हैज प्लेस ऑन यूट्यूब ए वीडियो ऑफ हिज ऑपरेशन। तो एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग कि हाउ कैन ए इंडियन। तो उसने कहा व्हाट इज देयर टू लाफ। कहते हैं ना, वी आर नॉट लाफिंग बिकॉज ही इज इंडियन सर्जन, वी आर लाफिंग बिकॉज ही इज हिज फादर ओनली। Then she said to my son, go back to India, why are you here? So what I mean to say, अब हमारा वो जो गैप था, नॉलेज गैप था, वो बहुत कम हो गया। अब we in some frames, some fronts, we are definitely leading because of the volumes, because of the numbers, and कुछ लोगों में यस कंपटीशन अब टफ है, पहले वाला गैप नहीं है कि इतना दूर लगता था कि यूएस में जाने में इतना कुछ सीख के आएंगे। नो, अब तो वहां से लोग सीखने के लिए आते हैं और सीख के जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आपके अकॉर्डिंग इंडिया इज रेडी फॉर दैट फ्लाइट राइट? Absolutely ready. वेयर डू यू फाइंड योर पीस? When I see within, then I am peaceful, very contented. मुझे लगता है वो धैर्य जो है ना, अब वो, और जो आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि कोविड से के बाद क्या सीखा, मुझे लगता है मैंने धैर्य बहुत सीख लिया। अब सर्जरी में भी वो आई ऑलवेज से दैट इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द काम इन द chaos. Chaos is there all around, pollution is there all around, but it has to be within. So I have started going within and I am at absolute peace. यार वो मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे से कितना तेज चल रहा है कितना धीरे चल रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं। वो एक्स गाड़ी चलाता है, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली इट इज़ अ लाइफ दैट यू हैव टू जस्टिफाई योर लाइफ, यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू द लाइफ, एंड जितनी खुशियाँ जितनों को आसपास या दुनिया को दे सकते हो दे दो, सो दैट अल्टीमेटली लिगेसी छोड़ के जाओ, दैट गिव्स मी पीस। So a legacy is what you want to be remembered for. Yes, that's what I'm saying. कि I want to be remembered as कि yes, he was an excellent surgeon. That is one aspect, but excellent human being, and he was ready to give, not take. Most of times, I would again tell you a story. Dr. अब्दुल कलाम, उनसे पूछा गया कि सर आप मिसाइल मैन बने, आप प्रेसिडेंट बने,
नटशेल में आप समराइज कर सकते हो कि एक सेंटेंस में कि क्या आप इतना चेंज कैसे कर पाए, और यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट। Yeah. तो ही सेड लिखो, सबको कैमरे वालों को कहा कि लिखो। कहते नहीं सर हम कैमरा, कहते नहीं कैमरा रखो, तुम पेंसिल और पेंसिल लिखो। व्हाट कैन आई गिव। कहते ज्यादातर लोग हर चीज में ये सोचते हैं व्हाट कैन आई टेक, What is in it for व्हाट me? इज इन फॉर मी। Yeah. बट अगर जिस दिन ये स्पिरिट आ गई ना कि देना है, अब तो हमारी उम्र भी है और देने के लिए स्पिरिट है, तो जिंदगी सफल हो गई। तो मुझे भी लगता है कि मेरे को तो हमेशा ये लगता है कि यार दूं, जितना दे सकता हूँ किसी को दूं, सो दैट अल्टीमेटली ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी एंड वी आर हैप्पियर। एज सिंपल एज दैट। Perfect. So life is not just about taking from people. So that is bullshit. It is about offering to the people, offering help to people, offering support to people. And with this episode, we tend to offer you, we train to offer you the knowledge about not just the subject which Dr. Bhatia was talking about, but also the life philosophy of being Dr. Bhatia. I hope you enjoyed this episode and find a lot of relevant moments from this conversation. Do let us know in the comments what is one thing from this episode which you take along with you to practice in your real life. Till then, keep smiling, and as Dr. Bhatia said, give. So give help to the people, make someone smile, and have a happy day ahead.